Okay, so we'll take lecture number two. Today we'll cover इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग तो हो गया था। आज कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है। ओके ओके। मैक्सिमम आई विल ट्राई टू कंप्लीट। ये दिख रहा है? हाँ ओके। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में कोई डाउट? नो। ओके। So we will start covalent bonding. कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था वो फॉर्म होता था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब अगर तुम दो दोगे तो तुम्हारा दोस्त भी दो देगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। दैट इज सेम नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ क्वांटिटी विल बी शेयर्ड। ठीक है। तब जो जब दो कंबाइनिंग एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो वो म्यूचुअल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब एक एक देंगे या फिर दो दो देंगे, तीन तीन देंगे, जितना भी उनको देना होगा। तो जब दो एटम्स ऐसा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो जो बॉन्ड रिजल्ट में आएगा, तो जो बॉन्ड रिजल्ट में आएगा उसी रिजल्ट को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उसी बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी फिनोमिना को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और जो कंपाउंड इस केमिकल बॉन्डिंग से रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। कोई दिक्कत? जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है दैट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स। तब ये दो कंबाइनिंग एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेंगे। जो उनका रिजल्ट होगा उस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और जो फिनोमिना होता है वो केमिकल बॉन्डिंग होता है। एंड द कंपाउंड व्हिच इज गोइंग टू रिजल्ट दैट विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? ठीक है। अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल। बोथ टर्म्स आर यूज्ड। ओके। So again, I'm telling the when two combining atoms, when they mutually share electron, okay, they result a bond. That bond is called chemical bond. Phenomena is called chemical bonding. The compound or molecule which will be formed will be called as covalent compound or covalent molecule. You already know this very basic concept, that is with respect to the non-metals. You know the non-metals are having 5 6 7 electron in their valence shell. So this covalent bonding is mainly formed between non-metals. Okay, that is the condition. This covalent bonding is mainly forming between two non-metals. Okay, suppose HCl is a covalent compound, it's an example. So hydrogen is also a non-metal, isn't it? Hydrogen is also a non-metal. Chlorine is also a non-metal, isn't it? So both non-metals are there. When they mutually share their electron, they form the bond. It is called as covalent bond. Clear? Next topic, that is types of covalent bond. So when we talk with respect to type of covalent bond, you will be studying three types of covalent bond. Okay, three types. The first we will be understanding that is single covalent bond represented by dash. Next we will be understanding double covalent bond. Okay, double covalent bond represented by double dash. Next we will be understanding triple covalent bond. Okay, triple covalent bond, it is represented by triple dash.
I will give you example. In case of single, you can just say hydrogen, hydrogen. Okay, represented by single. I'll explain you how the formation takes place. Okay, then double bond oxygen you can take. Okay, then triple bond nitrogen you can take. Okay, so like this like this the representation is shown. Okay, any problem? The next term we will be understanding that is covalency. What is meaning of covalency? So the number of, you can say the number of electron, okay, the number of electron which is mutually shared, okay, which is mutually shared, that is called as covalent या फिर कोवैलेंसी हम कह सकते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज म्यूचुअली शेयर्ड इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी क्लियर एनी प्रॉब्लम no. Next we will be understanding conditions for the formation of covalent bond. Conditions for the formation of covalent bond. The first condition is that both the atoms should be non-metal. Okay, both atoms should be non-metals. ठीक है नॉन मेटल्स मींस उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा होना चाहिए ठीक है मतलब 5 6 7 8 होगा तो नोबल गैस हो जाएगा क्लियर कुछ एक्सेप्शन भी है इस केस में आप याद कर सकते हैं दैट एक्सेप्शन इज बोरॉन बेरिलियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम ठीक है मेनी मोर यू कैन से the second condition you should remember both atoms should have high electron affinity. Okay, both atoms should have high electron affinity. Okay, EA means electron affinity. Both atoms should have high electron affinity. Clear? Then both atoms should have high ionization energy also. Okay, high electron affinity, high ionization energy also you can say. I hope you have not forgotten this term, isn't it? What is electron affinity? What is ionization energy? Okay. Next point, electronegativity. Okay, electronegativity that is En must be zero. बिटवीन बोथ एटम अगर एक एटम ए है एक एटम बी है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 तो जब डेल्टा ई एन निकालेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 वो अप्रोक्स जीरो आना चाहिए या फिर नेगलाइबल आना चाहिए ठीक है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होगा डेट इज ऑल्सो मस्ट बी जीरो देन ओनली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ओके Any problem? If you have any problem, you can ask. Okay. Then we will learn some of the important terms. That is structures. Few structures we will understand. First, that is hydrogen molecule. मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बाकी आपको ड्रॉ करना है ठीक है मैं ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बताऊंगा मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोग को ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है ठीक है आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एक और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होगा
अच्छा, क्या रीजन वाई कोवेलेंट बॉन्ड इज नेसेसरी, क्वेश्चन बताइए। वाई कोवेलेंट बॉन्ड इज नेसेसरी, नेसेसरी या फिर आप कह सकते हैं वाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। Search out this question, okay? Why covalent bond formation takes place. Next, here we are discussing with related to the hydrogen molecule. Here, hydrogen is having one electron. Here, another hydrogen that is also having one electron. So, this hydrogen is telling, let's share the electron. This hydrogen is also telling, I will also share the electron. Both are sharing one electron. Okay, both are sharing one electron, and after combination the structure will become in this way. When we talk with respect to this hydrogen have two molecule that is following duplet rule, and when we talk with this respect to this hydrogen will also have two electrons, it will also follow the duplet rule. Okay, so here one shared pair of electron has taken place. That is, one shared pair of electron has taken place. That's why between the hydrogen, okay, that's why between the hydrogen, the single bond will be formed, and this will be called as single covalent bond. Okay, this will be called as single covalent bond. And a molecule it will result that will be called as H2. Okay, so this molecule will be called as covalent molecule. once again I'll explain you, ये जो हाइड्रोजन है ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा तो कर नहीं सकता ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दे इसको और ये स्टेबल हो जाए, ये स्टेबल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं सकता। तो इसलिए ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, दोनों का फायदा देगा, दोनों के डुप्लेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, उन्होंने अपना म्यूचुअली शेयर ऑफ, ओके हियर म्यूचुअली म्यूचुअली शेयरिंग टेक्स प्लेस। ओके, म्यूचुअली शेयरिंग टेक्स प्लेस, और जब यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है फिर ये आफ्टर कॉम्बिनेशन ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब वो सिंगल बॉन्ड में रिजल्ट कर रहे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है उसको कोवैलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं, दैट इज H2। क्लियर? कोई दिक्कत? एक होमवर्क और लिखिए यहाँ पे, स्ट्रक्चर बनाना है आपको Cl2 का। ठीक है, अभी आगे भी एडिशनल होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आई डिस्कस, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और ऑक्सीजन, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बताइए, सॉरी इसको इधर आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, शेयरिंग में चल। तो ये बताइए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको स्टेबल होने में? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि स्टेबल हो जाए? ओके, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं, 2 तुम शेयर करोगे और 2 हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये म्यूचुअली शेयरिंग टेक्स प्लेस होगा, म्यूचुअली शेयरिंग टेक्स प्लेस होगा। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन इस तरह के फॉर्म में रिजल्ट करेंगे। मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, इसको इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करेंगे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए। ठीक है, ऑक्टेट पूरा कर लिए। ये किस बॉन्ड में रिजल्ट करेंगे? सॉरी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में रिजल्ट करेंगे। और जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा वो O2 होगा, जिसको हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, एनी डाउट? इसमें आपको कोई दिक्कत? श्योर, एनी प्रॉब्लम? नो, ओके।
इसमें आप ड्रॉ करेंगे सल्फर का। ये वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको आप छोड़ दीजिए, S8 आपने आपके सिलेबस में नहीं है। आप इसमें ड्रॉ कर लेना डबल। ओके, डबल का भी मैं होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट आते हैं। तीसरे नंबर का है नाइट्रोजन। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसके पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस नाइट्रोजन की बात करें, इसके पास भी कुल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर ले? 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। ओके, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये मतलब म्यूचुअली शेयरिंग अपना अपने करेंगे, क्योंकि ये अगर इसको 3 देगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो वो ये सब आपस में कहेंगे चलो हम आधा आधा दे देते हैं, बस सबका काम बन जाएगा। तो अगर ये काम बनाने चले, फिर ये नाइट्रोजन क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन के निकला। और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड में रिजल्ट करता है ना। इसको देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसको देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में रिजल्ट किया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में रिजल्ट किया। ओके, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में रिजल्ट किया, उसके बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा, दैट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इज N2। इसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ओके, एनी प्रॉब्लम? आप एक काम करना, इसमें एक वाटर, अमोनिया, CCl4, BF2, सारे होमवर्क लिख लो। CCl, CH4, ये इतने ड्रॉ करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ, लेट स्टार्ट। ओके, मीथेन वाला मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एक मैं डिस्कस करता हूँ, डेट इज CCl4, ठीक है। कार्बन की देखी जाए तो कार्बन की पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन की बात की जाए तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। एक और क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। एक और क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ये सब आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो जब आप स्ट्रक्चर देखोगे वो इस तरह बना देखोगे, ठीक है। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूं, आप देख लेना। ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे कि नहीं। ये जो रिजल्ट करेगा इस तरह के फॉर्म में रिजल्ट करेगा, सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये CCl4 कॉम्पाउंड में रिजल्ट करेगा, कोवेलेंट कॉम्पाउंड में, ठीक है। जब इससे तबीयत नहीं ठीक है तो फिर इतना करके लाना, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर, बाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। ओके,
ओके थैंक यू। कल देखते हैं, कल तो आई थिंक छुट्टी है ना। कल छुट्टी है ना। कल मॉर्निंग में क्लास लेंगे। इतने टाइम बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। ओके। ओके थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम पिछले क्लास की? टाइम कल के लिए अप्रोक्स कह सकते हैं 7, 7:30। ओके। और कोई डाउट पिछले लेक्चर से? और कोई डाउट पिछले लेक्चर से? पिछले लेक्चर से कोई डाउट? भी तो मैं भी उसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक टेस्ट भी अपडेट कर रहा हूँ, तो उसको करना 8:30 बजे तक अपडेट कर दूंगा। ओके टॉपिक सीजिए बट अभी मैं एक टेस्ट अपडेट करूंगा 8:30 पे, ठीक है। ओके 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 थैंक यू।